Assalamu alaikum everyone. As we have your mathematics exam tomorrow and I am receiving a lot of queries related to the formula. Mostly the students are asking me कि मिस कौन से formulas आपको exam में हमें मिले होंगे and what are the formulas which we need to memorize. But a very few formulas will be given to you during exam. Like you will be given the formula related to mensuration, trigonometry, quadratic formula. But there are still many other formulas which you need to memorize. So I thought I should make a video on the a formula sheet along with a very quick revision of every topic. Acha, by the way, this video will have a lot of parts, so if you want a very quick revision then you should watch all the parts. ठीक है, चलें let's start with the first chapter, numbers. ठीक है, numbers में first of all बेटा you should memorize the squares and cubes. Squares are included from 1 till 15. ठीक है, 1 से लेके 15 के squares आपको आने चाहिए and cubes में बेटा we have from 1 till 10. Alright, so you should memorize squares and cubes. These are part of your syllabus. Then the next we have is the concept of LCM and HCF. And remember, whenever you will go through these formulas, remember you must have the prime factors. You cannot apply these formulas unless until you don't have the prime factors. So LCM क्या होता है बेटा? Product of common factors. जितने भी बेटा आपके पास numbers है, whether they are 2 or 3, so first of all you have to see what are the common factors, and common factors में आपने highest power pick करनी होती है, and you should also multiply the common factors with the non-common factor as well. And if we talk about HCF, then HCF में you only have to pick the common factors but with the lowest power. ठीक है, so I have added a very brief example here as well. आप इस example को go through कर लीजिएगा, you will able to understand easily. जैसे for instance I have two numbers written in the terms of their prime factors. ठीक है, अब आप notice करो, if I have to find the LCM I should take the common factor with the highest power, that is 2 cube. 2 cube को pick करेंगे, 5 is a non-common factor, 7 is a non-common factor. On the other hand, if I have to take the HCF, then I have to pick the common factor only but with the lowest power. So see, 2 square is the one which is the common factor and it has the lowest power. After that बेटा ये भी एक concept आपके syllabus में आता था, halfway of a fraction. Halfway का मतलब है you have to find out the mid of a fraction. So what you need to do, you need to add both of the fractions, fraction 1 and fraction 2, and then you have to divide it by 2. So I have given a very easy example over here. 3 by 4 और 5 by 12 है बेटा, आप क्या करेंगे, आप 3 by 4 और 5 by 12 को ऐड करेंगे और फिर divided by 2. Now see, we cannot add two fractions unless until we take the LCM. So I have taken the LCM, 12 is my LCM और numerators में 9 और 5 आ गए. Now here comes the important point. बहुत सारे बच्चों को बेटा फ्रैक्शंस को हैंडल करना नहीं आता. Whenever you have a fraction in the numerator, make sure one thing, फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स है ना बेटा वो एक्चुअली जाके मल्टीप्लाई होते हैं. बट कैसे? न्यूमरेटर के जो फ्रैक्शन में होता है ना बेटा, न्यूमरेटर की फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वो नीचे जाके मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाली जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना बेटा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है. सो दिस 12 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस 2, फाइनली गिविंग यू 24. सो यहाँ पे बेटा मैंने फ्रैक्शंस के रूल्स भी लिख दिए हैं. यू कैन यूज़ दैट डिवीजन और वो रेसिप्रोकल वाला रूल, इफ देर इज़ अ साइन ऑफ डिवीजन यू कैन टेक द रेसिप्रोकल. बट दिस इज़ ऑल्सो फाइन इफ़ यू कैन गो थ्रू दिस. अब देखो बेटा ए और सी के हैं, दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स हैं, कीप देम एज इट इज़. व्हाट हैपन्स टू द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ ऑफ द फ्रैक्शंस? ऊपर वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे जाके मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, सो आई हैव गिवन 3 एग्जाम्पल्स ओवर हेयर. आप तीनों को बेटा गौर से देख सकते हैं. Now let's move to coordinate geometry बेटा. There are a lot of formulas in the coordinate geometry, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा आपके बेटा formulas हैं. So first of all we have the midpoint. Midpoint के लिए what we need to do, we should add the x coordinates of the 2 points and divide the sum by 2. Y coordinates को भी add कर लें और divide the sum by 2. ठीक है, provided कि this formula is applicable if we have been given the end points. 2 end points दिए हुए हैं, आप क्या करें, आप उससे easily midpoint निकाल सकते हैं. Then we have the gradient which tells the steepness of the line. Steepness means we have to find out कि what is the rise and what is the run. Rise और run की ratio है. So y2 minus y1 is the rise and x2 minus x1 is the run. तो rise और run की ratio is called as your gradient. Remember, for the midpoint the standard symbol is capital M and for the gradient the standard symbol is small m. Then we can also find out the distance or length of a line. Sometimes they ask us find the distance between the 2 points or you have to find out the length of a line. So for the length of the line what you need to do, बेटा ये जो आपके rise और run है ना, x2 minus x1 and y2 minus y1, just use them. So run का square कर लो और rise का square कर लो and then you have to use a square root. Actually Pythagoras theorem is being applied over here. ठीक है, so I have given examples here as well. आप ये देखें बेटा, इस साइड पे एग्जाम्पल्स हैं. इफ़ यू वांट टू गो थ्रू, यू कैन गो थ्रू दीज फार्मूलाज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स.
Next, we have the concept of parallel lines. So parallel lines are those whose steepness is same. So definitely for parallel lines, the gradients must be same. And what happens for the perpendicular lines? For the perpendicular lines, the gradients are negative reciprocal of each other. इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ कि there is a line which has a gradient 2, so उसकी बिल्कुल perpendicular line का gradient क्या होगा? -1/2. ठीक है, यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल बट यू हैव टू पुट द नेगेटिव साइन एज वेल, विच मीन्स कि इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज़ पॉजिटिव तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, और अगर एक लाइन का ग्रेडियंट खुद नेगेटिव है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, विच मीन्स यू हैव टू रिवर्स द साइन एज वेल. ये माइनस आपको क्या बताता है? साइन रिवर्सल बताता है. यू शुड टेक द रेसिप्रोकल एंड यू शुड रिवर्स द साइन. बेटा यूज़ दिस फॉर्मूला जब आपके पास एक ग्रेडियंट दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अदर ग्रेडियंट एंड यूज़ द अदर फार्मूला. ये वाला बेटा जो इसकी फॉर्म है ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, ये आपने तब यूज़ करनी होती है व्हेन एवर यू हैव टू प्रूव दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. अगर वो कभी आपको बोले कि प्रूव करो दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो फाइंड द ग्रेडियंट्स ऑफ बोथ ऑफ द लाइन्स, मल्टीप्लाई देम, यू शुड गेट -1 एज योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द इक्वेशंस ऑफ लाइन. सो बेटा हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस है? वी हैव द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू सी. सी वाई एक्सिस का वो पॉइंट होता है वेयर द लाइन क्रॉसेज y एक्सिस, बिकॉज द हॉरिजॉन्टल लाइन always crosses y axis. Then we have the vertical line x is equals to a, because the vertical line always crosses x axis. So इसकी equation भी बेटा x से start होती है, और a का मतलब है वो value where the vertical line crosses the x axis. And then we have line passing through origin. Any line which passes through origin has y intercept 0. So that's why the line squeezes and the equation is y is equals to mx. Next we have standard form of equation of slanting line. Any slanting line बेटा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. अच्छा, उसके बाद बेटा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, सिंस यू नो फ्यू ईयर्स दिस क्वेश्चन इज कमिंग, और बेटा प्रीवियसली इट वॉज पार्ट ऑफ ए लेवल सिलेबस बट नाउ इट हैज़ बीन एडेड टू योर ओ लेवल सिलेबस एज वेल सिंस मैनी ईयर्स. अब इसका क्वेश्चन आता है बेटा, सो देर आर मैनी चांसेस कि इसका क्वेश्चन आएगा. ठीक है, एंड द क्वेश्चन जनरली हैज़ 4 to 5 मार्क्स. सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि इसके पार्ट्स क्या हैं. ठीक है, और इसके साथ बेटा आई हैव डन एन एग्जाम्पल एज वेल. ठीक है, एक एग्जाम्पल भी है बेटा इसके साथ ये वाली. सो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको गो थ्रू कर लीजिएगा. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर द स्टेप्स. सबसे पहले फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव अ पॉइंट ए एंड आई हैव अ पॉइंट बी, एंड इन पॉइंट ए और पॉइंट बी का मुझे क्या बनाना है? यू हैव टू मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो सबसे पहली बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैज़ 2 फीचर्स इन इट. नंबर 1, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी. ठीक है, परपेंडिकुलर तो बेटा ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है. इफ़ दे ओनली आस्क यू फाइंड द परपेंडिकुलर ऑफ दिस लाइन देन इट मीन्स इट्स अ नॉर्मल परपेंडिकुलर. नॉर्मल परपेंडिकुलर का मतलब है वो कहीं पे भी बेटा पास कर सकता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट बाइसेक्टर, then do you know the meaning of bisector is कि it divides the line into 2 equal halves. So definitely it should pass through the midpoint. ठीक है बेटा, इसको मिड पॉइंट से पास करना चाहिए. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 2 फीचर्स हैं. नंबर 1, इट इज़ परपेंडिकुलर. नंबर 2, इट पासिस थ्रू द सेंटर और द मिड पॉइंट. सो सबसे पहला स्टेप क्या है? यू नीड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ ए बी, बिकॉज मुझे परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट कैसे निकालना है? बाय फाइंडिंग फर्स्ट द ग्रेडियंट ऑफ ए बी. सो द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट ए बी. ए बी ग्रेडियंट का क्या करें बेटा? नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लें, यू विल गेट द ग्रेडियंट ऑफ दिस. अब लाइन फाइंड करने के लिए आई ओनली नीड 2 थिंग्स. आई नीड ग्रेडियंट एंड आई नीड अ पॉइंट. पॉइंट क्यों चाहिए? सो दैट आई कैन फाइंड आउट द वाई इंटरसेप्ट, या उस पॉइंट को मैं पुट करके लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकूँ. ठीक है, बिकॉज देर इज़ वन मोर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, वाई माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. ठीक है, मोस्टली बच्चे ये ए लेवल में यूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे से फेमिलियर नहीं होते, इसलिए मैंने वाई इंटरसेप्ट का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है. बट दैट्स फाइन, इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट फॉर्म यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट फॉर्म. After that beta what I need to do, I need to find out the gradient of AB. सबसे पहले बेटा ग्रेडियंट निकाला, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट निकाला. इसके बाद बेटा मुझे क्या करना है? आई नीड टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बिकॉज दिस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिस थ्रू द मिड पॉइंट. सो इसीलिए बेटा मुझे मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना पड़ेगा. एंड देन आई हैव टू यूज़ दिस मिड पॉइंट. ये जो पॉइंट है ना बेटा, ए और बी नहीं यूज़ करना है, ये पॉइंट यूज़ करना है, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट आया था, इन दोनों को यूज़ करना है. इधर यू कैन फाइंड आउट द वाई इंटरसेप्ट, और यू कैन यूज़ दिस फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. ठीक है, इसको यूज़ करके फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. और आप इस स्टेप में क्या करें? वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लें पॉइंट को और ग्रेडियंट को यूज़ करके. एंड देन इन द लास्ट स्टेप यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू गेट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है,
बेटा ये आपके राइट पे मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं बेसिक, जिसको आप यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।